You analyze signatures, handwritings, and on the basis of that, आप guidance provide करते हैं. We read your subconscious mind using the tool of your handwriting. Like whatever is stored in your subconscious mind comes to your conscious mind, and then it comes on a piece of paper using the medium of fingers. 2011, I lost my father, and in that dream, my dad mentioned about Meher Baba. आपका पहला सेशन बस हैप्पी बर्थडे. Yes, वहाँ से बस. Okay. और फिर वहाँ से then things started moving. Initially, they were only angles, circles, lines ऐसे draw होता था for around about say a week. तो there was a process called as hand formation. Hand formation. हाँ. जिसे हम हिंदी में हाथ बैठना बोलते हैं. बस. किसी भी आर्ट क्राफ्ट में. So उसमें वो पहले designs, diagrams और वो सब आ रहे थे. Then alphabet, individual alphabet started, wording started, and everything started coming out. At this moment, is the soul attached to your body? Not at all. Because the soul feels that he has to enter that door. In that state of dilemma, क्या उनके इमोशनल अटैचमेंट्स उनको वापस पीछे नहीं खींचते कि नहीं छोड़ना है मुझे बॉडी? आपको अगर वो खींचेंगे तो भी आप रुक नहीं सकते हो, क्योंकि आपका टाइम आ गया, आपको जाना है. जिसे हम पोजेशन भी बोलते हैं. राइट. पर्सन गेटिंग पोजेस्ड. राइट. उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑटो राइटिंग करना है या नहीं करना है. ऑटो राइटिंग इज अ पार्ट वेयर यू कनेक्ट टू सोल्स. बराबर है. इट इज आफ्टर द सोल हैज एंटर्ड. बट मेनी अ टाइम्स इफ यू सी और हर, you will come to know that many people have been possessed. Yes, that's true. That wrong soul enters their body and wants to do all wrong things. Namaste and welcome to another exciting episode of the Speedy Pandit Show. मैं हूं आपका होस्ट यशराज और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर मनीष पांडे जी. मनीष जी एक एक्सपीरियंस्ड ग्राफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सिग्नेचर एनालिसिस और हैंडराइटिंग एनालिसिस में महारत हासिल की हुई है. पिछले 20 सालों में उन्होंने बहुत सारे लोगों की इस वजह से मदद की हुई है. लेकिन आज हमारा पॉडकास्ट और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि मनीष जी एक ग्राफोलॉजिस्ट ही नहीं, एक ऑटो राइटर भी है. ऑटो राइटिंग के माध्यम से वो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं और हमारे फ्रेंड्स और फैमिली से मिले हुए इनसाइट्स हमें बताते हैं और हमें गाइड करते हैं. आज हम मनीष जी से जानेंगे स्पिरिट वर्ल्ड की मिस्ट्रीज के बारे में, रेल्म्स के बारे में, हेवन एंड हेल के बारे में, कैसे कुछ लोग पोज करते हैं एज ऑटो राइटर्स बट दे आर फेक. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट. Hello Manish ji, welcome to the Speedy Pandit Show. Hello. How are you? I am great. Feeling good today to be on your show. And it is altogether I feel a very different experience. Manish ji, by profession you are a graphologist. Right. You analyze signatures, handwritings and on the basis of that आप guidance provide करते हैं. And आपके पास एक एनर्जी है या फिर आपके ऊपर एक ग्रेस है कि आप ऑटो राइटिंग भी करते हैं. सो आप थोड़ा सा ग्राफोलॉजी के बारे में एक्सप्लेनेशन देके हमको थोड़ा ऑटो राइटिंग क्या होता है ये आप बता सकते हैं? जरूर. बेसिकली ग्राफोलॉजी इज हैंडराइटिंग एनालिसिस. वी रीड योर सबकॉन्शियस माइंड यूजिंग द टूल ऑफ योर हैंडराइटिंग. लाइक whatever is stored in your subconscious mind comes to your conscious mind, and then it comes on a piece of paper using the medium of fingers. Right? Okay. इसी तरह से we can read a person's traits. I won't say personality, but traits, and also we can give remedies like graphotherapy to improve upon them. Okay. Same way, auto writing is on a spiritual concept. We do channelizing, and I am one of the medium to connect people or souls, I would say, from earth to heaven. यानी कि आप किसी सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आप लिख के दे सकते हैं. Yes. ओके. ये मतलब एट व्हाट एज, कब आपको ये पता चला कि आपके अंदर ये विद्या या फिर आपके ऊपर ये ग्रेस है और ये कैसे हुआ? 2011 I lost my father. Okay, he worked really very hard to meet all the ends, educate us and do everything. So he was so busy that I felt that he never devoted time to us. Okay. So as a child, I always felt that, he should have given me more time. And after he left this earth,
I started having that crave that, you know, I should be able to speak to him, or I should do something, or I should see him, you know, in that mental status and frame. Altogether I went. फिर मैंने लिटरली आई यूज्ड टू क्राई एवरी नाइट. क्या आप थोड़े नाराज भी रहते थे उनसे कि आपके साथ टाइम अच्छे से स्पेंड नहीं हो पाया? नहीं, नाराजगी नहीं थी. इनफैक्ट ये था कि ही वॉज रियली वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग अस अप. जी. So I always respected him for that. But the most important thing was I really missed him. And I felt that वो एक father और son में जो bonding था ना, वो हम लोगों में था, but we wouldn't और Express it. हाँ, express नहीं हुआ. जैसे हम हमारे फादर को कभी हग नहीं कर सकते, हमारे Absolutely. फादर से हम कभी डैड आई लव यू, वी कैन नॉट से दैट. Yes. देयर इज अ मैन टू Yes. मैन वो जो था ना, जी वो कहीं पे रह गया था. जी. So after losing him, I started finding him. I would say started that. finding him. Yes. And one day he came in my dreams and he said, there is no need for you to come up. I will come down and guide you. Okay. So the next morning, I visited one of my clients in Pune. This client was for graphology. Graphotherapy. Graphotherapy you were doing pre. Yes, Okay. I was doing it from the year 2001. अच्छा. Okay. So I met this lady and I told her that I have experienced so and so dream, and in that dream my dad mentioned about Meher Baba. मेहर बाबा. Yes. आपने इनका नाम कभी पहले सुना? कभी नहीं सुना था. Okay. So when I literally told her my dream word by word, she just showed me the photograph of Meher Baba which was in her house. And then that connection and that journey started. Then she took me to a Parsi lady Okay. who was already into auto sessions. So I told her my dream, Experience. my experience. What? So she said, "Okay, I'll get back to you after 3 to 4 days." She noted down my details, and then she informed me, saying that yes, you are one of the median, and you can speak to your father. How did this particular lady understand? इनको कैसे समझ में आया कि आप एक मीडियम हो अब? Basically, she took a confirmation. She spoke to her son, who was no more. Okay, उसने काल उनका नाम था, and everyone used to call this lady as Nan auntie, Nayan auntie, नैन आंटी. Nan auntie, I would Okay. say. So उन्होंने बात किया. She spoke to her son that so and so person, gentleman, has come to my house, and is he supposed to do an auto writing, or he is one of the median? और वहाँ से जवाब आया, yes, his father would love to communicate with him. ओके. सो आपको कुछ दिनों के बाद ये कंफर्मेशन मिल गया कि आप ऑटो राइटिंग सेशंस कर सकते हो. Yes. तो उसके बाद डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑटो राइटिंग Yes, सेशन? yes, that was a very different and a very lovely experience. This was round about say 3:15 in the morning, Brahma Muhurat जो बोलते हैं हम लोग. I started connecting. The process was explained to me by her, and I started channelizing with my father. जी. So I still clearly remember that was Dashera day. Okay. ओके. And he said, "Happy birthday." Okay, he wrote happy birthday. So I said, शायद से ऊपर दशहरे के दिन happy birthday wish करते. That was my first experience, and I was really this कि what exactly is happening. Then I discussed this with my family member. So they said that my father's best friend's son's birthday is today. ओह. So he wanted me to wish him. आपका पहला सेशन बस हैप्पी बर्थडे. Yes, ये वहाँ दो से words थे. बस. ओके. और फिर वहाँ से then things started moving. Initially there were only angles, circles, lines ऐसे draw होता था for round about say a week. तो there was a process called as hand formation. हैंड फॉर्मेशन. हाँ, जिसे हम हिंदी में हाथ बैठना बोलते हैं. बस. किसी भी बस. आर्ट क्राफ्ट में. So उसमें वो पहले डिजाइन्स, डायग्राम्स और वो सब आ रहे थे. Then alphabet, individual alphabet started, wording started, and everything started coming out. सो धीरे धीरे आपका जो एक्सपीरियंस है वो और इंटेंस होते गए. Yes, दिस इज व्हेन यू यूज्ड टू ओनली कनेक्ट विथ योर फादर. right.
आपको कब ये बात पता चली कि आप किसी और सोल से भी कनेक्ट कर सकते हैं? Right. क्या हुआ था? I used to speak to my father, and then my father said that I am given a work upstairs wherein the people, those who have come up, मुझे उनसे बात करना है और उनके फैमिली मेंबर को कनेक्ट करना है यूजिंग यू एज अ मीडियम हियर ऑन अर्थ. तो ये उनका पर्पस उस रेल्म में है. हाँ. ओके. So then I asked my father, do I have the permission to speak to other souls? And he said yes. Then he explained me the whole process, and that's how I started connecting to other souls and making their loved ones get connected and speak to them. जब आपका ये डिस्कशन हो रहा था विथ योर फादर स्पिरिट और हिज सोल एग्जिस्टेंस, तो ये इन अ ड्रीम स्टेट हो रहा था या इन अ मेडिटेटिव स्टेट हो रहा था? आप कौन से स्टेट में होते थे तब ये कम्युनिकेशन होता था, या फिर ये ऑटो राइटिंग में ही होता था? ये ऑटो राइटिंग में ही होता था. Okay. और ये कोई भी ये एकदम नॉर्मल स्टेज में होता Okay. था. There's, as I am speaking to you, the same way I feel I am speaking to him. ओके. सो हम थोड़ा सा इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो एंड आई एम श्योर फॉर आवर ऑडियंसेस ऑल्सो. Sure. ओके. अभी क्या है, इफ़ वी आर लुकिंग एट दिस एक्टिविटी, इसे हम स्पीडी पंडित के लेंस से देखने की कोशिश करेंगे. जरूर. अब ये लेंस कैसे देखेंगे कि सबसे पहले आपको एक ड्रीम आया, करेक्ट? तो ये ड्रीम्स क्या होते हैं, ये ड्रीम स्टेट क्या होती है? क्योंकि आई एम श्योर, आई जस्ट कंटिन्यू, इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं. बहुत सारे लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स आते हैं जो वो महसूस कर पाते हैं, जो वो याद रख पाते हैं. इन माई केस आई रिमेंबर ओल्डर ड्रीम्स ऑल्सो. इन सम केसेस क्या होता है कि सपने आते हैं लेकिन किसी को याद ही नहीं रहते. कोई लोगों को सपने आते ही नहीं हैं. तो व्हाट इज़ दिस ड्रीम एग्जैक्टली? सी, जहाँ तक मुझे पता है, there are 3 types of pattern of dreams. 3 patterns of dreams. Yes. Okay. I'll explain you how. जी. The first pattern is you get your dreams and you remember it very nicely when you are awake. जी. Okay? You can relate what did you see. जी. The second stage of dream is you see a dream but it is in a blur form or you don't remember at all. Okay. Okay? And the third one is few people get dreams which really show them certain instances which are going to happen in the future. So each individual is unique, I feel. Everyone has their own patterns of dreams. Okay. Okay. So my dream pattern was I clearly remembered what did my father say, and I was able to correlate. And through that dreams, I got to know that I am one of the median selected to be an auto writer. ओके. इसका मतलब जो हम ड्रीम्स देखते हैं, नॉट ऑल द टाइम इट इज़ जस्ट योर मेमोरीज प्लेइंग इन योर सबकॉन्शियस. अ ड्रीम कैन बी अ रियल इंडिकेशन और अ रियल मैसेज फ्रॉम अ हायर सेल्फ एज वेल. Yeah. See, I always feel, I don't feel, but what I have got to know from spirit world, I'll tell you. From your nabi, there is a silver pipe attached upstairs. So when you are in deep sleep, why do they say that please don't wake him up immediately? Because your soul travels upstairs. So when it goes up, it meets their loved ones, it meets their ancestors if there are any. They love, caress, they give a very soothing effect to the soul. So they feel good. Then they are in different states of mind, and then they send them back. इसका मतलब जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं, आर सोल इज ट्रैवलिंग इन द सोल रेल्म. Yes. वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. Absolutely. मैं आप लोगों को बताता हूँ. Okay. बहुत बार बहुत लोगों को लगेगा कि इन ड्रीम्स that they are pushed from somewhere and they are falling. जी. एक पेट में हल्का सा गोला आ जाता है. हाँ. जी. So that is the time the soul is traveling very fast from upstairs and wants to enter your body. Oh. I am sure a lot of people have had this experience. Yeah, that is why purposely I wanted to give a very simple experience for people to understand soul travels this way. Okay.
क्या इस स्टेट में हम, जो स्टेट है कि सोल ट्रैवल कर रहा है एंड ट्रैवल बैक कर रहा है, क्या इस स्टेट में हम मेडिटेशन के थ्रू भी पहुंच सकते हैं? यस, मेडिटेशन के स्टेज में भी पहुंच सकते हैं, बट उसमें आपको काफ़ी साधना करनी पड़ेगी. यहाँ पर आपको व्हेन यू आर स्लीपिंग दिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली टेक्स प्लेस, जी. और वहाँ पर ओनली फ्यू पीपल कैन अटेन दैट स्टेज. हियर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो goes through this process. Only the difference is there he or she understands that they are doing it. Here you all don't understand. Okay. Because at the end of the day, all humans are humans. जी. I get the opportunity to meet a lot of spiritually inclined people like yourself. सबसे मैंने ये थोड़ा थोड़ा सीखा है. सबको मैं अपना गुरु मानता हूँ. एक्चुअली मैं अपने गुरु की खोज में हूँ, इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया. सबसे यही सीखा हूँ कि एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसे हम थीटा स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, विच इज़ अ डीप मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड. वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, वहाँ पे आप वाइब्रेशंस को फील कर सकते हो. सो जब आप फर्स्ट टाइम ऑटो राइटिंग कर रहे थे, या फिर जब आपको फर्स्ट टाइम आपके डैड सपने में आए थे, क्या आप वो स्टेट ऑफ माइंड में थे? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको? देखो, इफ़ आई हैव टू शेयर माई एक्सपीरियंस, अगर मुझे मेरे बारे में बोलना है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस होने के पहले आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन, जैसे आप लोग हो, ओके. बट जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, सो आई माई सेल्फ गो इन अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, ओके, जी. which I won't say that I have attained through meditation or doing sadhana or thing. No, this is what you say. This is a thing that might be expected from me to be done. So they take me in that state of form, and I immediately change roles. You change roles. Yes. Okay. Okay. That is the time when I do my session. My aura will be different. My voice will be different. My thought process will be completely different. And when you speak to me in a normal way, it will be different. यही मैं जानना चाह रहा था एक्चुअली, कि जब आप एक सोल के साथ कनेक्ट करते हो, आई हैव एक्चुअली सीन यू डू दैट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड यू हैव डन दैट फॉर मी एज वेल, विच आई मस्ट से वॉज एप्ट. तो जब आप वो कनेक्शन करते हो, तब आपको क्या फील होता है? लाइक आई एम स्पीकिंग विथ यू, सो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ वर्ड्स. मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, मैं आपके वर्ड्स सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ, एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग इट. When you are connecting with a soul, it does not have a body, A. It has no sensory organs, so it cannot give you any kind of information like that. So वो experience क्या होता है? Basically, I would say it's a feeling. It's a feeling. Okay. It's an emotion that runs through my body. Okay. I would like to share an example. If a soul is unhappy and wants to convey something, कुछ उसको बोलना है, if that soul is crying, I also start crying, because it is passing messages through my subconscious mind. If the soul is happy, you will see that smile on my face. Okay. Many a times it so happens that my hands get heavy when I am writing. जी. मेरा head heavy हो जाता है. जी. Or sometimes it is a cool breeze that is passing around me. There's a cool breeze around you. Yes. That means that is the soul that you can sense. Yes. But I don't want to mention it in any form. Okay. I would love to say that it's a feeling of bliss, feeling of happiness. Why? Because I'm doing a good cause by connecting their loved ones to that soul, and happily they can interact, discuss things, take guidance. So that gives me an ultimate satisfaction that I'm really doing something in my life for the society, for the mankind. Our generation is a huge fan, lot of them are huge fans of horror movies. एक है ना कॉन्जूरिंग नाम का एक हॉरर मूवीज़ का सीरीज़ है, लॉट ऑफ मूवीज़ दे हैव. उसमें एनाबेल क्रिएशन नाम का उनका एक मूवी है. उसमें क्या है, दैट यंग गर्ल पासेस अवे ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट, एंड द फादर ओन्स अ टॉय स्टोर, टॉय मैन्युफैक्चरिंग.
आफ्टर द डॉटर इज डिसीज्ड व्हाट हैपेंस इज, वो एक डॉल होती है जिसके अंदर वो एनाबेल नाम की जो लड़की होती है उसकी आत्मा आ जाती है, एंड इट इज़ टेकिंग परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स कि क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ इसके अंदर. तो पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स गेट इमोशनल एंड दे अलाउ दैट सोल टू लिव इन द बॉडी ऑफ द डॉल. अब क्योंकि उन्हें पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि ये एनाबेल ही है या कोई और है, वो एनाबेल ना एक गेम खेलती थी अपने डैड के साथ, शी इज टू राइट ऑन चेट्स एंड शी इज टू हाइड एंड सीक. तो उसने पहले विश्वास दिलाया कि ये मैं ही हूँ. वंस इट एंटर्स द डॉल, इट स्टार्ट शोइंग अपना असली रूप, स्टार्ट्स गेटिंग बिगर, मोर डेंजरस, एंड अल्टीमेटली दे फाइंड आउट दैट इट इज़ नॉट एनाबेल, इट वॉज द डेविल हिमसेल्फ मास्क्ड एज एनाबेल. मैं जितना प्रोसेस कर पा रहा हूँ आपकी बात, उसमें क्या है कि आप एक मेडिटेटिव जोन में जा रहे हो एंड यू आर अलाउिंग योर बॉडी टू बिकम लाइक अ वेसल, जहाँ पे एक सोल एंटर कर पा रहा है आपकी बॉडी में. आपको क्या अश्योरेंस है कि ये वही सोल है एंड इट इज नॉट समवन एल्स हु इज एक्टिंग लाइक एन इम्पोस्टर. तो हाउ डू यू रेक्टिफाई दैट? जैसे मैंने ये मूवी का नाम सुना एनाबेल, आई रिमेंबर माई 5-year-old डॉटर सेइंग that let's watch Annabelle movie. Okay, so I could able to okay, correlate. connect Yeah. what exactly you want to say. जी. See, basically what happens is, the things what I am doing, I have given a cloak. Cloak is a protection for me, wherein no wrong soul can enter my body, because when आप auto writing करते हो तो your body is open for souls to enter. Okay, so जब cloak होता है, cloak is a protection around you, wherein you will not allow a negative soul to enter your body. So I am rest assured that whichever soul comes is a good soul. It will not harm me in any way. And as I am doing a good cause, okay, I am helping out people. So I know that my conscious knows that कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो definitely अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ ही जोड़ेगी और आगे अच्छा ही होगा, ऐसे करके. So ये जो protection होता है, ये उन लोगों के लिए होता है those who are median. Okay. बट आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, मेनी a times it so happens that many people claim that they are auto writers. जी. Okay. Correct. So the onus lies on them. If they are really given the authority, they can do it. But if not, there is quite possibility that the wrong soul can enter their body. People claiming to be auto writers का हम we'll get to that topic. Okay. Now what I want to understand over here is that you are blessed by the grace of Meher Baba that you are having that cloak. For some people, no, जब वो उस स्टेट में जाते हैं, एक सोल क्या उनकी बॉडी में एंटर कर सकता है जब उनको पता भी नहीं है कि वो ऑटो राइटिंग के लिए अनेबल्ड है या नहीं है? तो कैन अ रॉन्ग सोल एंटर इनटू देयर बॉडी, जिसे हम पोजेशन भी बोलते हैं, राइट? पर्सन गेटिंग पोजेस्ड. राइट. उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑटो राइटिंग करना है या नहीं करना है. ऑटो राइटिंग इज अ पार्ट वेयर यू कनेक्ट टू सोल्स. बराबर है. इट इज आफ्टर द सोल हैज एंटर्ड. But many a times if you see or heard, you will come to know that many people have been possessed. Yes, that's true. That wrong soul enters their body and wants to do all wrong things. So ऐसा होता है. So it is how strong or how weak is your soul, that depends on that. Is your soul? Yes. Okay. आपका सोल किस तरीके से है ये वो सामने वाला जान लेता है. But if you are walking on the street, no wrong soul can enter. Only there are certain places if you visit और वहाँ पर कुछ ऐसी negative energies है, I would say, then it is harmful. जो जगहों को, जिन जगहों को हम haunted places बोलते हैं, Absolutely. there are haunted houses, there are haunted streets. Absolutely. Okay. What is a haunted state? What is a haunted street? What is a haunted house? वहाँ पे जैसे आपने कहा कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्या इसका मतलब ये है कि कोई सोल वहाँ पे बैठा हुआ है जिसको बुरा करना है? अब वो सोल वहाँ पे क्यों बैठा है, उसको बुरा क्यों करना है? सी, हर एक सोल का एक जर्नी होता है. ओके. सो वो जो सोल है उसको पता है कि उसका वो कार्मिक ये है, और ही इज नॉट बीन कंसिडर्ड अपस्टेयर्स, तो वो इधर है. जब उनको किसी भी रेल्म में जगह नहीं मिला है, एंट्री नहीं मिलता है. बराबर है. ओके. और वो एंट्री कब नहीं मिलता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू कमिट सुसाइड.
Okay. because birth and death is designed by him. You are no one to take that decision. So जब उनको एंट्री नहीं मिलता है तो वो दे स्टे ओवर हियर एंड देन दे आर सर्चिंग फॉर सच बॉडीज वेयर दे कैन एंटर इनटू देम एंड डू ऑल नेगेटिव थिंग्स. Okay. Suicide is a Suicide is considered to be the most dangerous, I would say, crime where spirit world is concerned. so it is a crime of nature. Yes. You are nobody to take your life because you are not being given this life. Someone is sitting over there who has given you life. He has written your date of birth and death. Okay. Everything is written. Destiny is already written and then you are sent down. Okay. Suicide is one reason that a soul, is still there on earth, walking the earth and trying to enter different bodies to experience a number of things. It could be any things related to a sensory organ, with sexual desires, alcoholism, etc., etc., etc. कुछ भी हो सकता है. सुसाइड के अलावा कोई और रीजंस हो सकते हैं कि एक सोल को वहाँ पे पोजीशन नहीं मिल रहा है. क्वाइट पॉसिबल है कि जो लोअर रेलम में है सोल्स, ओके, दे आर एज इट इज इन द लोअर रेलम, सो देन दे कम डाउन and try to find out such negative places, or they can enter somebody's body and do wrong. They don't want to improve their karma and go higher. So for this you will have to give us some context. What are realms and what are lower realms and higher realms? Sure. Yeah. See, I would explain you in terms of floor. Okay. Okay. जी. 7 floor का building है. Okay. 1 to 4, first floor to 4th floor is hell. Is hell. Okay. Now understand, वो 1 to 4 में भी 1 to 2nd floor में जाने में भी 10 steps है. So you have to pass by all the steps and then go to the 2nd, then 3rd, then 4th, and 5th, 6th, 7th is heaven. 5th, 6th, 7th is heaven. Wherein good souls Reside. and after they leave this earth, they go over there. So once when I was speaking to my father, he just explained me in such a way that he said, Manish, you are staying on the ground floor and I am staying on the first floor. So the lower जो realms होते हैं वो अर्थ के या फिर हमारे थर्ड डायमेंशन के काफ़ी पास में है. Yes. If this is true, then we can safely say that we can easily attract negative energy more than we can attract positive energy. Yeah. But Okay. positive energy को अगर आना है तो they will not take, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वो लोग आने के लिए, बिकॉज दे आर मोर फास्टर देन दिस, बिकॉज दे आर मोर सुपीरियर, आई वुड से. दे हैव मोर अथॉरिटी. ओके, दे हैव गॉट मोर कमांड. हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे आर मोर प्योर सोल्स और गॉडली सोल्स. सो इफ दे वांट टू विजिट अर्थ, दे कैन डेफिनेटली डू दैट. But it depends on their will. It's free will. It's free will. Have you only come across negative souls that are walking the earth, या फिर positive souls भी हैं जो हमारे आसपास हो सकते हैं? Yeah, I'll explain you. I do not deal with negative souls. You do not deal with negative No, souls. not You have at never all. come across one? No, because my body is protected. I don't want to also get them. जी. Okay, I don't want to interact with them. जी. Neither they can interact with me. So I am only opening a pave way to positive souls, and these are the people when they have done good karmic over here and gone upstairs. So उनके loved ones से they can come and speak down. तो ये उनको permission मिला है. Okay. जैसे हम बात कर रहे थे about places having negative energies, places having negative souls. अब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है whenever I am speaking with any पंडित जी, whenever I am speaking with any spiritual gurus, is that some of your office spaces या फिर आपका घर का जो स्पेस होता है उसमें कभी कभी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो क्या कर रही हैं, आपके माइंड को गलत दिशा दे रही है थिंक करने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज देयर, इट इज़ मेकिंग यू मेक द रॉन्ग डिसीजंस. सो प्रॉबली इन अ बैड वाइब्रेशनल ऑफिस स्पेस आप गलत बिजनेस डिसीजंस लोगे. इन अ बैड वाइब्रेशनल हाउस आप गलत फैमिली डिसीजंस लोगे. Right. तो एक डिटोरिएशन आपका चालू हो जाता है. आर देयर एनी वेज दैट वी कैन क्लेंस दिस? See, जैसे हम लोग बोलते हैं कि you can do पूजा पाठ. जी. Okay, you can. Yeah, that is what where I wanted to get actually, कि जब हम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, जब हम
कोई तंत्र मंत्र करते हैं, हवन करते हैं, हमें तो ये सिखाया गया है, हमारे पुराणों में भी यही लिखा गया है कि आप पूजा पाठ करेंगे, एक चांटिंग करेंगे, मंत्र चांटिंग करेंगे तो वो एरिया प्यूरिफाई हो जाता है. बट बिकॉज यू गेट टू कनेक्ट विद द सोल्स. इज इट ट्रू? 100% ओके. बिकॉज जब हम लोग चैंटिंग करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, सी बाबा ऑलवेज सेज दैट यू हैव टू विजिट द टेम्पल. व्हाई यू हैव टू विजिट टेम्पल? बिकॉज योर ऑरा ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी. ओके. Okay, so when we go to temples or holy places, our body gets recharged. Just understand this. So जैसे मान लो ऑफिस में या घर में आपको लगता है कुछ नेगेटिविटी है and all those things, when you do chanting or you do puja part or all those things, you are cleansing not only your aura but the environment in which you are staying. As well. Okay. Okay, so these are basically energies, right? So when ये चैंटिंग या पूजा पाठ या जिसका इनका प्रभाव बढ़ जाता है, सो दिस नेगेटिव एनर्जीज वैनिश, डेट्रॉइट और लीव दैट प्लेस. डू दे लीव द प्लेस और डू दे गेट मोक्ष? और क्या हम उनके पाप कम कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो वो उनके कर्मा है, वो उनको भुगतना है, उनको फेडना है. हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारा ऑरा क्लेंस कर रहे हैं कि भाई हमको इधर कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए. सो जब ये पूजा पाठ जाप या जो भी जो कुछ होगा, ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है एंड दे वैनिश. They just vanish from there. Yeah, because many a times you see why people say that कि यार कुछ किसी पंडित को बुला के दिखाते हैं जगह, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते, क्यों बोलते हो? क्योंकि मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है या घर में अशांति है, मेडिकल प्रॉब्लम है, ये सब है. हमने भी यही सारे रीजंस बहुत काफी देखे हुए. राइट. तो जब आप ये सब करते हो, दे डेफिनेटली फील अ 360 डिग्रीज चेंज. या. ओके. जी. सो सबकॉन्शियसली दैट पर्सन विल डायरेक्टली गेट कनेक्टेड टू यू कि नहीं भाई ये पुजारी आए थे घर पे, इन्होंने ये किया, तो वो एक तरीके से उनसे लाइफ लॉन्ग जुड़ भी जाते हैं. सो उसके बाद अगर किधर भी कुछ करना है तो देन दैट पर्सन इज इन्वाइटेड बिकॉज दे कंसिडर दैट पर्सन एज शुभ और गुड फॉर देम. ऐसा है. सो यस, puja part and all these things play a very vital role to cleanse the premises and cleanse your aura basically. Yes. Which will eventually help you, feel better, take better decisions, and eventually be successful or whatever you want in life. आप अगर एक देखोगे तो आपका एक फेस कभी नहीं चलता है लाइफ का. जी. There are ups and downs. जी. So वो ups and downs जब आदमी डाउन जाता है तो ये सारी चीजें करता है टू कम अप. Am I right? जी. फिर उसका कुछ कार्मिक रहेगा जो उसको फेडना है तो वो वापस नीचे जाता है. सो ये तो लाइफ है ना, साइकिल चलते रहता है. अभी क्या है कि ऑल थ्रू आवर लाइफ्स हमने बहुत लोगों को खोया है. करेक्ट. इट मे बी आवर ग्रैंड पेरेंट्स, इट मे बी आवर फ्रेंड्स. कई एज की वजह से हमने खोए हैं, कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से खोए हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से हमने खोए हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है. एक है ना, बहुत मन में एक बात रह जाती है कि हम अब उनको देख नहीं पाते हैं, अब हम उनको मिल नहीं पाते हैं. तो ये लगता है कि क्या वो ठीक होंगे. अभी अगर मैं कहूँ नॉर्मली तो एक अगर अच्छा व्यक्ति है जिसने अच्छी लाइफ जी है, जिसने नहीं किसी को तंग किया है, एंड वो गुजर जाते हैं प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज या फिर इन यंग एज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम डिसीज. तो आई एम श्योर मेरे साथ साथ हमारे ऑडियंस भी ये जानना चाहेंगे कि क्या होता है उन सोल्स के साथ, कहाँ होते हैं, क्या वो अच्छे होते हैं, उन्हें क्या वहाँ पे सब अच्छी चीज़ें मिलती हैं. जस्ट शेड लाइट. सी जितना मुझे पता है, they can take any shape or any form. They can take any shape and any form. Any form, just understand. So जब मैं अपने पिताजी से ये सारी बात करता हूँ, तो जब मैंने उनसे बात किया था तो वो बोले कि एक बड़ा पॉन्ड है ऊपर. ओके. ओके. देयर इज नो फूड. जी. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. जी. खाना नहीं है, पीना नहीं है, पानी नहीं है, नथिंग. सो दे सेड वी टेक अ डिप इन द वाटर in that pond and we recharge ourselves to do things. Do they dive into a pool of positive energy? Yes. Okay. And they take that and recharge themselves. Okay. अभी जैसे आपका जो सवाल का जवाब है कि वो ऊपर है, खुश रहेंगे, क्या है ऐसे करके, तो जब भी उनको उनके लव्ड वन से बात करना है तो वो बराबर उनको किसी ना किसी ज़रिए से वो मेरे पास ले आते हैं.
और मैं उनकी बात करा देता हूँ. एंड देन आप यकीन नहीं करोगे, वो जो कुछ चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें जो अर्थ पे करते थे, जैसे बहुत सारे सोल्स बोलते हैं वी आर वेरी हैप्पी वी डू गार्डनिंग अपस्टेयर्स, वी आर मेकिंग अ गार्लैंड for a big function that's going to happen upstairs. Can they do that? Of course, of course. Okay. So, I don't know in what form they are doing it. Okay? Exactly. But when they tell me all these things, definitely I can picturize what the way they tell me, and I can feel that emotion. कि भाई there is a function upstairs, हम लोग garland बना रहे हैं. अभी किसी के father ने कहा, here he was having some ailment regarding his leg. He says there ऊपर races होते हैं, running races होते हैं, I always participate and win in that races. But we cannot put it in our understanding कि ये running race मतलब क्या है. हाँ. It is their way of telling us. But the way they tell us, हम लोग अर्थ का पिक्चराइजेशन करेंगे कि यहाँ पे अगर रनिंग रेस है, आप और मैं भाग रहे हैं, तो वी विल पिक्चराइज दैट देयर इज अ ग्राउंड, स्टार्टिंग पॉइंट है, विनिंग पॉइंट है, रिबन रहेगा इफ यू रन, यू नो ऑल दोज थिंग्स. सो उस तरीके से वी कैन विजुअलाइज. मनीष जी, आपने एक जस्ट अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी अबाउट रेल्म्स. जब हम बात कर रहे थे अबाउट हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग और नर्क एग्जिस्ट करते हैं 100%. क्या रीजंस है कि हम नरक में जा सकते हैं और क्या रीजंस है कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं. और इसमें और एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक अगर मैंने कुछ गलत काम किए हुए हैं, मुझे आज रियलाइज़ होता है आफ्टर 27 years ऑफ माई लाइफ, कैन आई रेक्टिफाई देम एंड नाउ एटलीस्ट आई कैन ट्राई टू गेट इनटू हेवन. सी, कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में जाएगा, इसका पूरा लेखा जोखा उनके पास रहता है. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे आपकी टीम है, आप लोग ये कर रहे हो, वैसे ऊपर एक टीम बैठी है जी, जिनके पास सब अपना डेटा है. बट मैं एक सिंपल बताना चाहता हूँ, आपको अगर लग रहा है आपने कुछ गलत किया है और आप आज अगर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बिकॉज वेन यू टेक बर्थ एंड यू कम डाउन, दिस इज अ स्कूल फॉर यू, दिस इज अ लर्निंग. सो स्कूल में क्या होता है, आप मिस्टेक्स करते हो, उसको रेक्टिफाई करते हो, या वो क्लास रिपीट करते हो एंड यू गो अहेड. सेम थिंग हैपन्स हियर. इफ आप से फॉर एग्जांपल आप 27 years के हो, आपको एक फीलिंग आया कि मैंने कुछ गलत किया है, आई वांट टू रेक्टिफाई, यू चेंज योरसेल्फ. डेफिनेटली इफ यू मेक एन एफर्ट एंड रियली डू इट होल हार्टेडली, आस्क फॉरगिवनेस फॉर ऑलमाइटी, डेफिनेटली यू कैन गो इन अ पॉजिटिव वे. क्या स्टेजेस होते हैं हेल में, क्या स्टेजेस होते हैं, क्या वातावरण होता है वहाँ पे, क्या होता है बेसिकली, और हेवन में क्या होता है बेसिकली? मैं आपको एक सिंपल बताना चाहता हूँ. आई विल नॉट कंपेयर इन टर्म्स ऑफ पीपल और what exactly is happening, but I would like to say that you just understand that, you know, जैसे if you are in hell, वो सारी चीज़ें होगी जो आपके साथ, जो आप सोच भी नहीं सकते. ओके. और मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग आपको पीटेंगे, मारेंगे, या जो हमने सुना है गरम तेल में तला जाता है, ऐसे मारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके. बट डेफिनेटली मुझे ये पता है कि एक आयन का बड़ा बॉल होता है जो आपके बॉडी से अटैच रहता है विद अ स्ट्रिंग, एंड वेयर एवर यू गो यू हैव टू कैरी दैट एंड टेक दैट हैवी वेट. वी हैव टू टेक द बर्डन अलोंग. सो ऑल इंसेक्ट्स विल, यू नो, crawl over. Are these metaphorical terms like you said about the running race? क्या ये भी metaphors हो सकते हैं? हो सकते हैं. So that is suffering basically. But rather than speaking about suffering, I would love to speak about heaven. Of course. There you will be all together in clouds. Do whatever you want. आपको लगा आज पेंटिंग करना है, पेंटिंग करो. आज आपको लगा रेस में पार्टिसिपेट करना है, अगर रेस है तो यू कैन डू दैट. टुडे यू फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यू कैन डू दैट. ऑल दोज थिंग्स. सो आपको सुन के भी अच्छा लगता है, मुझे बोल के भी अच्छा लग रहा है कि अच्छी चीज़ें, यू नो. मेरा ये फोकस रहा है आज तक कि मैं पॉजिटिव चीज़ें पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, पॉजिटिव ही बताऊँ और लोगों को उसी तरीके से गाइड करूँ. वन लास्ट इंक्विजिशन आई हैव अबाउट हेल टू हेवन. अगर कोई सोल है जो रेल्म 1 पे है, फर्स्ट रेल्म ऑफ हेल, उसको 7th हेवन पे जाना है. अभी उसमें भी 10 स्टेप्स है.
सो वो कैसे सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाता है या जा सकता है? नहीं, उसको सारा स्टेजेस पार करके जाना है। क्या करना होता है? व्हाट आर द स्टेप्स? अभी मैं आपको बोलता हूँ। वो स्टेज पार करने के लिए उसको सेवरल टाइम्स अर्थ पे जन्म लेना पड़ेगा और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। सो एज पर हिज कार्मिक दिस, उसका ग्रोथ उधर होगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। उधर का क्लॉक जो है वो बहुत स्लो स्पीड में चलता है और इधर का क्लॉक जो है वो फास्ट स्पीड में है। तो आप जो भी उधर करोगे, ऊपर करोगे, दैट विल टेक टाइम फॉर यू टू गो अहेड। ओके। और गति प्राप्त करने के लिए उधर टाइम लगेगा। बट आप अगर बोलते हो मैं जन्म लेकर नीचे जाके अच्छी काम करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। फास्ट भी होगी, डिफिकल्टीज भी ज्यादा आएंगी। डिफिकल्टीज तो आएगी, एवरीबडी हैज डिफिकल्टीज, बट यू विल लर्न, यू विल ओवरकम एंड गो अहेड। That means whenever we are facing any difficulties in life, we are actually fulfilling our destiny. Of course, Okay. because we have to learn to overcome that difficulty and go ahead. Okay. जैसे मान लो आपको कुछ डिफिकल्टी आई तो आप आपका वेपन नहीं डाल दोगे ना आज, जी, आप फाइट करना है। उसको फाइट करोगे। बिल्कुल। आपने बोला कि एवरी टाइम आई वांट टू रेज अ लेवल इन माई सेल्फ ऊपर, आई विल हैव टू कम डाउन in the form of humans, If you wish to. if you wish to. Otherwise it will take a lot of time over there. So people prefer going down. That means that reincarnation is there. 200%. reincarnation होता है। क्या exactly वही soul वही family में वापस reincarnate हो सकता है? And I have a follow up question over here is that बहुत बार सुना है because I come from a small town. So इसके घर में वो बेटी वापस से आ गई है, इसके घर में वो दादी माँ वापस से आ गई है। अभी उसका जो प्रमाण पत्र होता है वो क्या होता है? बर्थ मार्क्स। इज इट ट्रू दैट दिस हैपेंस? Yes, this is 100% हाउ इज इट true. पॉसिबल? आई मीन coming or bringing back the physical self, the soul is coming back is something that I understand, but some अगर- marks were there on your physical self, even that is coming back. Yeah, नहीं, I'll tell you what happens जी। is that mark is an indication कि आपके कोई पूर्वज आए हैं। क्यों लेके आते हैं लेकिन reincarnated souls मार्क क्यों लेके आते हैं? Because वो दिखाने के लिए कि yes, I was in this family and I have again come because I have not settled my karmic debt over here. With those particular family members? Not only, it could be with those family members, or then they have to do certain things in their life which they were not able to do it in past life and now they will be able to complete it. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है एंड ही इज अ वेरी गुड सर्जन, अकाल मृत्यु, राइट? सो उसको तो वो था ना कि मैंने कंप्लीट नहीं किया मेरा जर्नी, आई वांटेड टू ट्रीट पीपल, आई वांटेड टू डू सर्जरीज, मेरा हुआ नहीं, सो अगेन ही विल कम बैक and complete his professional life. But why do they choose to come back in that particular family? It depends. Okay. It depends. You are given a choice. You are given a choice. Yes. Okay. If you want, you can come here or you can take. But जो कार्मिक रहता है उसमें चॉइस नहीं रहता, वो कार्मिक आपको खत्म करना रहता है। So it is basically to settle your accounts. You can come back. You can have a reincarnation. और उसका जो एक प्रमाण पत्र है वो आपके बर्थ मार्क्स हो सकते हैं. Right. But is it all the time when you get reincarnated you will have those birthmarks? No, not necessary. Not necessary. Many times it so happens that the person will remember everything what has happened in his past life. जो हमने बहुत बार देखा है न्यूज में. Right. तो वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो भी एक इंडिकेशन रहता है. But this happens very very rarely. Means I would say the percentage is hardly 1 to 3%. Why are some souls able to do that and why are 99% souls Yeah, not because able to do आपका that? ना मेमोरी पूरा वाइप कर देते हैं and then they send you back. Because in my next life, suppose I will take birth and come and become a scientist, I don't want my soul to remember that I was an handwriting expert Okay. or an auto writer, example. तो मुझे उस चीज़ के लिए क्रेविंग होगा ना, क्योंकि वो तो मेरा पैशन था वो लाइफ में, जैसे आज मैं बोलता हूँ, सो माई पैशन इज माई वर्क, सो आई विल गेट डाइवर्टेड फ्रॉम व्हाट आई हैव टू डू. और मेरा कर्मा जो बोलता है कि मैंने ये लिख के लाया, मुझे ये रोल प्ले करना है. So that is why 99% of the souls do not remember their past lives. Right. Why is 1% that they do? Yeah, why they remember is because they want to tell that family कि कुछ रह गया था. It's not necessary they take birth in the same family. They go and visit the family. So they say कि मेरा ये चीज़ रह गया था और मुझे ये करना है. And when they meet and complete that, then that part is over.
एक बहुत बड़ा inquisitiveness for the entire mankind has been how does life enter your body and how does life exit your body. इस बात को अभी तक साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर पाए हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजियस टेक्स्ट्स देर आर सम थिंग्स जहाँ से हमें पता चलता है. सो फॉर एग्जाम्पल इन आवर हिंदू स्क्रिप्चर्स, 3rd month when the baby is inside the womb, the life is entering the womb, and probably at the time of deathbed it is either getting released through your anus or something, or your crown chakra. When you are coming across souls and when you are speaking with them, have you ever interacted with them and have you ever asked them कि आप बॉडी में एंटर कैसे करते हो और एग्जिट कैसे करते हो? Yeah, this is a very interesting question for you also and for the audience also. Yeah, I'm sure. See, I'll tell you exactly what happens is when two people are getting physical, okay, there will be lot of souls around them. When they are into an intercourse. Right. Okay. बहुत सारे souls आ जाएंगे because उसमें से एक सोल को डिफाइन किया गया है कि यू विल एंटर दिस बॉडी. जैसे आपने बोला वो 3 महीना या जो भी प्रोसेस रहता है वो सोल एंटर करता है बॉडी के. सिंपल. सो वो सोल देखेगा कि हाँ मुझे ये मदर के वूम में जाना है. गॉट इट. मेनी ए टाइम्स आपने सुना होगा मिस कैरेज हो जाता है या दे अबॉर्ट फॉर सर्टेन XYZ रीजंस व्हाटएवर इट इज, सो दैट दिस सोल नोज कि हाँ अगर मेरा जन्म होने वाला है, मुझे जाना है, तो मुझे वो सर्कल कंप्लीट करना है. And it enters and takes birth as a baby. Just understand. The same soul का एक time लिखा है, say 60 years, 70 years, 80 years. So when it completes its karmic circle and wants to go out, it's not only that it goes out from crown chakra, it can go out from eyes, mouth. But what happens, I would like to love to tell you, is what happens. Please. They see a door which is full white in color with a bright light, and you are moving towards it. At this moment, is the soul attached to your body? Not at all. Because the soul feels that he has to enter that door. In that state of dilemma, क्या उनके इमोशनल अटैचमेंट्स उनको वापस पीछे नहीं खींचते कि नहीं छोड़ना है मुझे बॉडी को? आपको अगर वो खींचेंगे तो भी आप रुक नहीं सकते हो क्योंकि आपका टाइम आ गया, आपको जाना है. So they realize कि उनको उनके फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जाना है. बराबर है. And how are they feeling at that particular moment? अगर आपको लग रहा है कि उनको दुखी लग रहा है या दे आर, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट दे फील वेरी हैप्पी दैट दे आर गोइंग टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, समथिंग गुड विल हैपन. ओके. सो दे आर ट्रैवलिंग. बट जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट में जाता है या ये, सी एनी सोल हैज टू ट्रैवल क्योंकि उसका टाइम आ गया, उसको जाना है. पर फिर वो जब वो अंदर एंटर करके वो जब जाएगा उसके रेल्म में, उधर अगर वो एक्सीडेंट से गया तो ही इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, तो उसको एक शॉक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे डालते जहाँ पे उसको काउंसलिंग करते कि आई नो आपका टाइम नहीं आया तो आपको हीलिंग करते. सो ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, तो वो उधर जाता है. Those who are happy, उनका टाइम खत्म हो गया, they are very happy. वो बोले अच्छा हो गया. Those who have died of old age properly, उन्होंने पूरा लाइफ जिया है. So they are very happy. They are very happy. We have completed our circle. We are here. What about the souls जो they have battled a long medical condition and that time they are much more happier. Okay. Because relief मिल गया ना बॉडी को. देखो, the most luckiest soul कौन सा होता है वो मैं आपको बोलता हूँ, जो बॉडी रिलीज करता है, जो सडन डेथ से जो जाते हैं. सडन डेथ से जो जाते हैं. यस. एक्सीडेंटल डेथ. कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट. ओके. जहाँ पे उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है, ना उनको मेडिकल सफरिंग होता है, कुछ नहीं. वन अटैक एंड फिनिश. सो जो सडन डेथ होता है ना, लाइक हार्ट अटैक एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट सोल्स आर रियली गुड सोल्स एंड दे डोंट हैव टू सफर मच. And it is also better for their further journey. Yes. Okay. See, while growing up in my childhood, we have had a lot of pets. अभी भी मेरे घर पे बहुत सारे pets हैं, लेकिन every time we bring in a small puppy, a small kitten, we bring it as a child. It stays with us for 8-10 years. And वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो हमारे लिए तो it's like a child-like personality. And then due to age or some factors it passes away.
Are pets also go to the same realm? Are their souls also in the same realm where human souls go? सी उनकी ना योनि जो कहते हैं ना हम लोग योनि जी, होती है जी। वो पूरी अलग होती है. ह्यूमंस की योनि से एनिमल्स की योनि अलग होती है. सो अगर इफ अ पेट डाइज इन योर हाउस, लेट इट बी कैट, डॉग, वट एवर XYZ, सो उसका जो नेक्स्ट लाइफ होता है वो कोई पेट का ही होगा. ओके, दैट इट कैन बी व्हाट यू से अ टाइगर, अ जिराफ, वट एवर It will be an animal only. animal. But if it's a snake, just understand, next life dog से snake होता है, so snake is the last life of animal योनि, समझो. और उसके बाद उसको मनुष्य का जन्म मिलता है. आफ्टर स्नेक कंप्लीट्स हिज और हर साइकिल. एवरी योनि हैज अ साइकिल ना. Okay. डॉग का एक लाइफ होता है 14 ईयर्स का. ओके, बर्ड्स का एक लाइफ होता है 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, वट एवर. यू कंप्लीट योर सर्कल एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट दिस. So can we say that in an animal yoni, वहाँ पे कुछ 7 realms होंगे? मुझे उनका नहीं पता कि Okay. वहाँ पर 7 realms है वट एवर, बिकॉज एनिमल doesn't have its mindset to think, or you cannot say that animal is doing something wrong or good or whatever. Okay, because it is acting on their instincts only. If Simple. a tiger is hungry, it's hunting. Simple. If it's not hungry, it's So sleeping. तो उसका वो उसको दिया है ना, उसको बोला है वो जी, करने जी। के लिए. So you cannot blame. उसमें तुम उसको So blame नहीं उसके कर कर्म उसके हाथ में नहीं है, is what नहीं you're है, saying. नहीं है. इसके लिए तो वो जानवर है और हम इंसान हैं. But इंसानों के हाथ में उनके कर्म है, and we can 100%. still control it. Of course. Okay. That's why I tell everybody, कुछ करो मत, just do one good deed every day Mhm. and you will reach where you have to go. तो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल. See, one question that is just there in my head is that हमें नेचर का बैलेंस रखना है. लाइक यू सेड कि सुसाइड इज द वर्स्ट क्राइम ऑफ नेचर, बिकॉज Right. आप नेचर की जो क्रिएशन को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जो आप खुद हो. Right. You're a part of nature. Correct? Whenever someone is consulting you and you're connecting with their beloved soul, और वो आगे टाइमलाइन में जाके उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करके या फिर देख के आपको बता रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हो. नाउ इफ देर इज गोइंग टू बी अ मिसहैप, आई एम ऑलरेडी अवेयर दैट देर इज गोइंग टू बी अ मिसहैप. what I can do is I will stop doing those things. I'll be conscious enough. I'll take the right steps and I will make sure that that mishap doesn't happen. तो मैं अपने आप को सेव कर दूंगा. इसमें क्या हो रहा है कि जो सोल है उसने तो नेचर का रूल ब्रेक कर दिया ना. जो होना था उसने वो होने को टाल दिया. Isn't that breaking the rules of nature? होनी को कोई नहीं टाल सकता. वो तो होके ही रहेगा. सिर्फ उसका जो इंटेंसिटी है, अगर आपके कर्म अच्छे है तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू विल मीट विथ एन एक्सीडेंट. ठीक है, तो एक्सीडेंट 2 व्हीलर पे हो सकता है, 4 व्हीलर पे हो सकता है, जी. बराबर है, एयर में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता You है. can also fall down the stairs. सिंपल. जी. सो जहाँ पर आपका एक्सीडेंट होता है और जिस जगह पर आप हो वो जगह अगर आपको बचाती है तो आपका कर्मा कहीं तो अच्छा है. सो यू आर नॉट बीन हर्ट और डैमेज इन द वे विच यू वुड बी. Okay. सो हाईवे को मैंने सिर्फ सर्विस रोड कनेक्ट कर दिया है. आपको जाना उधर ही है बट यू विल टेक द सर्विस रोड, Okay. वेयर इन द इंटेंसिटी विल बी लिटिल रिड्यूस्ड बट यू हैव टू फेस दैट. Also your beloved souls, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स जो उस रेल में हैं, जिन्होंने आपको आगाह किया है कि ऐसे कुछ होने वाला है, डू दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल कि उस चीज़ की इंटेंसिटी कम करने में? 100%. हाउ डू दे प्ले अ रोल? Because they come and tell you, एंड they guide you, and they Okay. might be doing certain things upstairs. okay, so they are which also will- doing certain Yes, things upstairs. Yes. Now for example, a person is not able to connect with you. If until yesterday I was not aware of you, and I am also not aware कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन एक सेंस आ जाता है कि यार कुछ तो गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है. In such a case, if I am connecting to a certain deity, correct, कि अगर कुछ होने वाला है आप देख लो, तो is the deity also doing the same thing for me? Absolutely, absolutely. Because हर जगह मैं प्रेजेंट नहीं रह सकता हूँ ना. मैं मेरे एक लाइफ टाइम में मैं एक सिलेक्टेड या लिमिटेड लोगों को मिल सकता हूँ, जी. पर बाकी दूसरों का क्या जिनको मैं नहीं मिल सकता. सो ही इज द सुप्रीम पावर टू डू दैट.
ओके, सो वो जो आपने बोला एक सिक्स सेंस जो आता है वो आपको उसी का इंडिकेशन रहता है. यहाँ पर मैं बोल के बता रहा हूँ, वहां पर आपको इंडिकेशन है. सो दैट इज़ वाई अगर अकाल मृत्यु की जैसे हमने बात की, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सो इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन आवर रिलीजन दैट यू डू अ लॉट ऑफ हनुमान चालीसा जाप, यू डू महामृत्युंजय जाप. तो क्या उससे फ़ायदा होता है? 100%. हाउ डज इट एक्चुअली अफेक्ट यू? When you chant and you do things, you are asking the Almighty to help you, to guide you in situation. So when you call for help, definitely they will come and guide you. अगर आप आवाज़ ही नहीं दोगे, सी जब तक बच्चा रोता नहीं है मम्मी उसको दूध देती नहीं है. सेम इट इज़ द मदर यूनिवर्स नेचर. दिस इज आवर मदर यूनिवर्स and you are praying. You are not only praying to one power, but you are praying to mother universe to help you. So when you pray or you tell guide me, protect me, there are angels who are coming and guiding you. So basically with the help of chants you are channelizing the supreme Absolutely. power towards yourself. Yes, you're not, I wouldn't say channelizing, I would say you are asking like a protection or a cloak to them that please help me and guide me in any calamity or a situation. Okay. So again, you know, जब हम 7th realm पे पहुंच जाते हैं उसके बाद कुछ सीखना बाकी रहता है, या we have done all our learnings? Our learnings are done. Our learnings are done. That's the stage of moksha. Moksha. So in such a case now a soul does not have to come back to the third dimension that we live in, and कुछ उनको सीखना नहीं है, कुछ उनको करना नहीं है, उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है. कुछ नहीं. उसके बाद उस सोल को क्या करना है फिर? Why is it existing in the 7th dimension? Yeah, because he is given that privilege or that thing to be there, stay there. See, he should stay, and whatever he wishes to do, he can do over there. So एक उनका जो कार्मिक सर्कल खत्म होने के बाद जो उनको दिया गया है, फिर आगे वो जो पूजा पाठ करना चाहे, जो भी उनको करना है, वो उधर बैठ के कर सकते हैं. After that, do they get connected with the creation and the creator itself? Absolutely, yes. क्या होती है वो प्रोसेस? Basically, once they get moksha, जी, then they are one to one with Paramatma. That is called as Paramatma. फिर वो उनसे गाइडेंस लेते हैं, भाई हमने ये करना चाहिए कि वो उधर भी उनको कुछ जॉब्स असाइन किए होते हैं, काम असाइन किया होता है, और वो आई वुड से अपने लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है. उनको पता होता है उनकी जर्नी क्या है, क्या करना है उनको. सो मैंने कभी वो जर्नी उनकी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिनको मोक्ष मिला है सही है. फेयर इनफ. क्या आप डेटीज को भी चैनलाइज कर सकते हैं इन ऑटो राइटिंग? यस, आई कैन डू दैट, बट यूजुअली मैं जो करता हूँ, आई स्पीक टू मेहर बाबा एंड द पीपल दोज हु आर नो मोर ओवर हियर, उनको उनके लव्ड वन से कनेक्ट करता हूँ. लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर न्यूज़ में बहुत चला था कि देयर वाज बागेश्वर धाम, और ऐसे कई सारे बाबास थे जो आपने प्रोसेस तो देखा होगा कि वो क्राउड में से किसी एक को उठाएंगे. देयर इज लैक्स ऑफ क्राउड्स. दे विल जस्ट पिक समवन अप, दे विल कॉल ऑन द स्टेज, दे विल लुक एट देम, दे विल कनेक्ट विथ इन बागेश्वर धाम्स एग्जाम्पल, दे विल कनेक्ट विथ हनुमान जी. वो उनको कुछ नॉलेज देते हैं, वो एक पीस ऑफ पेपर पे लिखते हैं और वो दिखा देते हैं कि ये आपका लाइफ है, ये सही है या गलत है. इज दैट ऑल्सो फॉर्म ऑफ ऑटो राइटिंग? I don't know it is auto writing or not, but one thing I can say कि yes, they are also channelizing with the higher duties and getting messages. तब क्या हुआ था ना न्यूज़ में, the news channel people called a lot of mentalists, और जो mentalists आए थे उन्होंने ये claims किए कि this is something that I can also do, बट उसका एक साइंटिफिक प्रोसीजर है हमारे पास करने का. क्या प्रोसीजर है कि वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में कुछ डालते थे. they'll put in some numbers, they'll put in some colors, they'll ask you to write something, और वो पहले से ही राइट करके they'll show it like a magic. तो हम एक नॉर्मल पर्सन कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि एक पर्सन जो हमें गाइड कर रहा है वो मेंटलिस्ट है या ऑटो राइटर है? इज बिकॉज इफ समवन इज गोइंग टू एन ऑटो राइटर विथ अ होप कि मेरा कोई डिसीज्ड लव्ड वन मुझे गाइड करने वाला है, और वो जाते हैं किसी मेंटलिस्ट के पास who is exactly cloaking himself to be an auto writer, that mentalist can also use this person for his benefit. So इसको हम कैसे differentiate कर सकते हैं?
मैं आपका ही उदाहरण लेना चाहता हूँ। जी मैं आपके पास आया था, मैंने आपको कुछ बातें बताई, जी ठीक है, जो भी आपकी जो पर्सनल थी वो, करेक्ट. आप मुझे क्या डिफाइन करोगे? एम आई एन ऑटो राइटर और आई एम अ मेंटरिस्ट? In my personal experience, you gave me a prediction rather than giving me मेरे current traits, and that prediction to certain extent came true, and that is the reason I gave you a call and I told you. आपने बोला था ये हो जाएगा तो मुझे आप कॉल करना, और मैंने बोला कि ये टास्क हो गया है, आपने मुझे बोला था ये टास्क करने को, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग यू. बराबर. अभी इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ आपको दिखा, या मेरा कोई पर्सनल ये था कि मैं ये करूंगा फिर आपसे मैं ये नहीं, लूंगा? बिकॉज यू generally also never charge anything for auto writing etc, so there is no financial involvement, there is no financial transition. Right? जी So I came with a pure heart to just guide you and help you. करेक्ट. So जब इंसान आपके पास आता है, you are the best just to understand that to whom you are meeting and connecting. सो इंस्टिंक्ट्स पे हमें Absolutely. ट्रस्ट करना चाहिए. See, this is the world of globalization. जी बराबर है. So I feel humans are very very intelligent. वो सामने वाला एक अंदाज एक भाप लेता है कि नहीं भाई ये अपना यूज करने आया, ये अपने को गाइड करने आया है, ये अपना लॉजिक है या सिक्स सेंस है, जो भी है ऐसे करके. सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि हमको डिफिकल्टी जाएगा कि किसी को पहचानना है. नो, इट इज़ वेरी सिंपल. सामने वाले के इंटेंशन से और जो आपको लिख के दिया उससे मालूम पड़ जाता है. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बाबा ने बोला है आप 1 लाख रुपए मेरे बैंक के अकाउंट में डालिए तो आपका ये चीज़ सही होगा, ऐसे करके आप इमीडिएटली समझ जाओगे. क्योंकि जहाँ पर फाइनेंस, पैसा, लग्जरी, मटेरियल चीज़ आया, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इज नो मोर. करेक्ट. बट आपको लगा कि नहीं इन्होंने मेरे लिए कुछ किया, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, इन कैश और इन काइंड वॉट एवर, दैट इज योर पर्सनल जेस्चर. बट एम आई एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू? आई केम विद अ प्योर सोल, प्योर हार्ट टू गाइड यू. करेक्ट. सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ये विद्या मुझे मिली है तो मुझे इसका अच्छा यूज़ करना है, जी सही मार्गदर्शन करना है लोगों को. और आई थिंक दैट इज़ द रोल दैट इज़ डिफाइंड बाय ऑलमाइटी फॉर मी. एंड आई एम श्योर कि आप इसे प्रॉपरली फुलफिल करेंगे, एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज वील ऑल्सो try to help you in this journey. Thank you so much, Manish ji, for coming to our show today and helping us understand how the spirit world works. It genuinely is a very good insight for us. Thank you so much. Most welcome.